Good morning, dear students. We have discussed with you line by line explanation of the chapter The Enemy by Paul S. Buck. Now we will give a full explanation of the chapter in one go. Dear students, हमने पहले आपके साथ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के पार्ट शेयर किए, आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। अभी हम एक साथ फुल एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि एक बार में आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। द स्टोरी इज सेट अप ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। इट इज अ वॉर फिक्शन बाय राइटर पॉल एस बक। द मेन कैरेक्टर्स आर डॉक्टर सदाओ होकी, a Japanese surgeon trained in America, Anna, Dr. Sadao's wife, and Tom, American soldier, sailor, US Navy sailor, POW, prisoner of war। तो प्यारे बच्चों, जो ये स्टोरी है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का सेटअप है। ये एक वॉर फिक्शन है, पॉल एस बक द्वारा लिखी गई है ये स्टोरी। इसके मेन कैरेक्टर है डॉक्टर सदाओ होकी। डॉक्टर सदाओ होकी जो है एक जैपनीज सर्जन है जो अमेरिका में ट्रेंड है, अमेरिका में सर्जरी की और मेडिसिन की पढ़ाई करके आए हैं। और हना उनकी वाइफ है जो उनको अमेरिकन प्रोफेसर के घर मिली थी। और टॉम एक अमेरिकन दैट इज यूएस नेवी का सेलर है जो प्रिजनर ऑफ वॉर है, युद्ध बंदी है, जो शायद जैपनीज सेना से बचकर आ गया है और उसको वुड शॉट भी लगा है, गोली लगी है, गन शॉट लगा है सॉरी, और वुंडेड है वो, और रॉक्स वगैरह से भी वो वुंडेड हो जाता है। एन इंजर्ड अमेरिकन सोल्जर वाज अशोर्ड नियर डॉक्टर सदाओ's हाउस। बोथ डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ अना वर इन अ डिलेमा whether to take the injured soldier inside their house or put it back in the sea. Finally, they decided to take that American soldier to their house. There, Dr. Sadao decided to operate upon the soldier, but servants were not interested in helping them, and they were quite stubborn, and a great resistance was from their side, and they denied to help them in their daily routine and cleaning of that American soldier, white man. Then Dr. Sadao's wife Anna has to help doctor as a nursing assistant. She helps her husband in operating that American soldier, but they were always in a feeling of fear. They were always afraid that someone from authority or police may come to their house, and their career and reputation and even life was at stake. For Hannah, Dr. Sadao thought that he should get rid of that American soldier. He told General Takima that there was an American prisoner of war in his house and he saved his life by operating upon him. General Takima assured him that he will send private assassins to his house and he will be saved, because private assassins will murder then that American in a night or two. Then Dr. Sadao waited for those private assassins, but they didn't turn up to his house. He kept the gates open of that bedroom in which American POW was staying, was operated upon, but he waited for 3 consecutive nights, but private assassins didn't turn up. Then he thought he need to help that American in escape. He arranges
for a boat and some food items and clothing for that American POW white man, and asked him to go to a nearby island which was a deserted island, less frequent. Visitors never visit that place and nobody visits that island. Then Dr. Sadao asked that American to go to that island and waited for a Korean fish boat, because Korea was not an enemy of America. That's why Dr. Sadao asked that American prisoner of war to wait for a Korean boat so that he can ask for a lift safely and escape that area safely, and told General Takima that the prisoner has escaped. Then General Takima, who was operated upon by Dr. Sadao a week before, told him that due to his poor condition he forgot to send private assassins. That is not a case of patriotism, but it was due to negligence or due to his condition he forgot to send private assassins. In this way, Dr. Sadao saved life of American prisoner of war. Thus, Dr. Sadao upholds the ethics of medical profession in treating an enemy, and story is a great lesson of peace, love, sympathy and humanism. प्यारे विद्यार्थियों, ये कहानी जो है इसमें 3 मेन कैरेक्टर हैं. डॉक्टर सदाओ होकी एक जापानीज सर्जन है जो अमेरिका में ट्रेंड है, अमेरिका में मेडिसिन और सर्जरी की पढ़ाई करके आया है. वहीं पर उसकी वाइफ हना उसको मिली थी उनके अमेरिकन प्रोफेसर के घर. जब वो रात को डिनर पे गया था उनके घर, तब उसकी वाइफ वहां मिली थी. उस रात वो वहां डिनर के लिए जाने की सोच भी नहीं रहा था, पर लक बाई चांस हो गया तो हना उसको मिल गई थी वहां. और जो थर्ड कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर है, टॉम है, अमेरिकन सोल्जर है, अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है, यूएस नेवी का सेलर है, जो बचा के, और जो डॉक्टर सदाव का घर है वो समुद्र किनारे है. वो समुद्र किनारे बह के आ गया उनके घर के सामने, और शाम को डॉक्टर सदाव की एंड हिज वाइफ अन्ना वर स्टैंडिंग आउटसाइड देयर हाउस, एंड देन दे सी अ बॉडी मूविंग, एंड व्हेन दे गॉट क्लोज टू दैट बॉडी, इट वाज an American US Navy sailor, later found out to be Tom. वो डिसाइड नहीं कर पाते, डिलेमा में कि उसको अपने घर ले जाएं कि समुद्र में वापस छोड़ दें. फिर फाइनली डिसाइड करते हैं उसको अपने घर ले जाते हैं, और डॉक्टर सदाव डिसाइड करता है कि उसका ऑपरेशन कर दूं, नहीं तो वो मर जाएगा. फिर डॉक्टर सदाव टॉम का, अमेरिकन सोल्जर का ऑपरेशन करता है. जो सर्वेंट्स हैं घर के वो हेल्प करने से मना करते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर सदाव अपनी और उनकी सबकी लाइफ को स्टेक पे डाल रहा है, कैरियर को, बच्चों के जीवन को, कि वो एक एनिमी को शेल्टर दे रहा है. और यूमी जो बच्चों की भी केयर टेकर है, उसको हना हेल्प करने के लिए कहती है. उस अमेरिकन सोल्जर को जो मड में लथपथ है उसको क्लीन करने के लिए कहती है, तो यूमी मना कर देती है. तब हना को उसको खुद ही क्लीन करना पड़ता है. फिर डॉक्टर सदाव ऑपरेट करता है और धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है. फिर वो जो हना है, बीच बीच में उसके बॉडी पे जो निशान है, जैसे गर्दन पर डीप रेड स्कार्स है, उनको देखकर सोचती है कि होपफुली वो टॉर्चर नहीं हुआ हो. फिर उसको जनरल ताकिमा की याद आती है हना को, कि उनके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि जहां भी जापानीज आर्मी जाती है लोग खुले दिल से उनका स्वागत करते हैं कि उन्होंने उनको लिबरेट करा दिया है. पर जनरल ताकिमा जैसा आदमी जो घर पर अपनी वाइफ को भी क्रूअली बीट करता है, क्या वो एक उतना लिबरल और जेनरस सोल्जर या एडमिनिस्ट्रेटर या लीडर होगा कि कहीं और लोगों को वो टॉर्चर ना करे.
फिर धीरे धीरे वो अमेरिकन सोल्जर ठीक हो जाता है। एक दिन डॉक्टर सदाव चीफ ऑफ पुलिस को एक लेटर लिखने की ट्राई करता है, पर इनकम्प्लीट लेटर अपने ड्रार में रख देता है। और फिर वो जनरल ताकीमा को ट्रीट कर रहे थे, इसलिए उनको ट्रुप्स के साथ वॉर में नहीं भेजा गया था। फिर डॉक्टर सदाव जनरल ताकीमा को बता देते हैं कि एक अमेरिकन सोल्जर बह के उनके घर के सामने आ गया है और उन्होंने उसका ऑपरेशन करके उसको बचा लिया है। जनरल ताकीमा कहते हैं कि वो अरेस्ट नहीं हो सकता, उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वही एक है जिस पर जनरल ताकीमा को भरोसा है। डॉक्टर सदाव कहते हैं कि और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। तब जनरल ताकीमा कहता है कि बेस्ट वंस आर ट्रेन्ड इन जर्मनी एंड दे विल ट्रीट द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ जनरल वाज डेड। कि जो ज्यादातर बेस्ट सर्जन्स हैं वो जर्मनी में ट्रेंड है और जर्मनी में ट्रेंड होने की वजह से उनका एक मतलब फीलिंग सा हो गया है कि बेशक आदमी मर भी जाए पर वो ऑपरेशन को सक्सेसफुल मानते हैं। अगर उन्होंने उस चीज को रिमूव कर दिया या प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, आदमी बेशक मर जाए पर ऑपरेशन सक्सेसफुल मानते हैं। उनके अंदर इमोशनल टच नहीं होता। तो जनरल ताकीमा चाहता है कि डॉक्टर सदाव एक साइंटिस्ट भी है, तो वो ऐसा कुछ करे कि जो जर्मनी ट्रेंड सर्जन्स हैं उनके अंदर उनके रूथलेसनेस के साथ इमोशनल कोशेंट भी जुड़ जाए, जैसे अमेरिकन के पास। तो फिर वो कहता है जनरल ताकीमा कि वो प्राइवेट असैसिन्स भेज देगा डॉक्टर सदाव के घर और वो उसको क्वाइटली मार देंगे और उसको किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर वो उस अमेरिकन जिस बेडरूम में उसके फादर के बेडरूम में, डॉक्टर सदाव के फादर के बेडरूम में रखा गया है उसको, उसका एक गेट खुला छोड़ देता है जो गार्डन की तरफ है, पार्टीशन खुला छोड़ देता है ताकि असैसिन्स आए उसको मार दें। फिर वो एक नाइट वेट करता है, दूसरी नाइट, तीसरी नाइट, और प्राइवेट असैसिन्स नहीं आते हैं। और फाइनली डॉक्टर सदाव डिसाइड करता है कि उसको बचा ले और एक बोर्ड देता है, उसको खाना पीना देता है, एक टॉर्च भी देता है कि उसको कैसे सिग्नल करना है, एक फ्लैश के लिए और 2 फ्लैश। अगर खाना वाना उसका खत्म हो जाए तो उसको एडवाइस भी करता है कि रॉ फिश उसको खानी पड़ सकती है पर आग मत जलाना, क्योंकि आग वहां से नजर आ जाएगी। और सनसेट के टाइम भी आप फ्लैश सिग्नल करना टॉर्च से, अदरवाइज डार्कनेस में दिख जाएगा। और फिर उसने कहा भी है कि अगले दिन वो ठीक है पर वही है आइलैंड पे, ऐसे आइलैंड में वो भेजता है जो नियर बाई आइलैंड है उस बोट के साथ उसको, जहाँ पे पास से कोरियन फिश बोट्स गुजरती हैं। उसको कहता है अमेरिकन सेलर को कि कोरियन फिश बोट से हेल्प मांगना और उनमें चले जाना, क्योंकि वो अमेरिका के एनिमी नहीं है। और नेक्स्ट डे वो देखता है कि कोई सिग्नल नहीं है, तो वो अमेरिकन सेलर सेफली वहां से एस्केप कर जाता है। फिर नेक्स्ट डे जाकर जनरल ताकीमा को डॉक्टर सदाव कहता है कि दैट अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर व्हाइट मैन हैज एस्केप्ड। तब जनरल ताकीमा कहता है कि उसकी कंडीशन खराब थी, इसलिए वो भूल गया था प्राइवेट असैसिन्स को भेजना, और कोई बात नहीं, वो चला गया है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे डॉक्टर जो डिलेमा में था, द्वंद में था कि क्या करूं, उसको बचाऊं या पुलिस को हैंड ओवर कर दूं, आर्मी को दे दूं। फाइनली अपवर्ड्स एथिक्स ऑफ मेडिकल प्रोफेशन इन ट्रीटिंग एन एनिमी एंड स्टोरीज अ ग्रेट लेसन ऑफ पीस, लव, सिंपैथी एंड ह्यूमनिज्म। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।